Hello everybody. Today I want to explain the remaining topic, that is multiple images formed by the mirrors. Many mirrors are combined together. Then another topic that will be remaining, that reflected light or reflected objects can be reflected again also. How it will be possible? If your mama has, or you have done the new hairstyle, then what you want, that you can see your hairs at the back, from the back, but you are that hair from the back are not visible. Then what you will do? Your mama will take the, or put the just mirror at the back side, then you can see your hairstyle. Okay, so it means if the two mirrors will be there, they are perpendicular, they may be parallel, so you can see the images between them. If the two mirrors are parallel, it means infinity images are formed into them. So how many images are formed by these mirrors, and how we can find out the number of images from them? That let us discuss now. After that we will discuss the human eye also. Okay, so let us start. First, you know what are multiple reflection. Actually, multiple reflection is the phenomena in which we get multiple images of the objects. Means we will get many images, multiple images of the object. Why these multiple images we are getting? Because as you know that the images formed by one mirror, they act as an object for the second mirror. For example, ये मार्कर है, सामने मिरर है तो मार्कर इधर दिखेगा, इसमें दिखाई देगा, इसकी इमेज उधर मिरर में, सामने भी मिरर है, दोनों तरफ मिरर है. So this one is reflected again and again, or many images will be formed by this marker. Okay, so infinity images are formed if the two mirrors are parallel from each other, they are kept parallelly. Okay, now if it is possible only when we are using the multiple mirrors. So how we can find out the number of images formed by these mirrors? If we will arrange the mirror like that at 90°, so how we can find out the images? So let us write the formula. For that we have the formula n equals to 360 upon theta. In place of theta you can write AB also. Theta is the angle between the mirrors and n is the number of images. Okay, then minus 1. If the theta is 90°, then find out the number of images. We will put the value into the formula. N equals to 360 upon 90 minus 1. Sometimes the number of images will be theta is odd number, then the 360 upon 90 the formula will be there, or if it will be even, then 360 minus 1, 360 upon theta minus 1 is the formula. So in higher classes you can do that, but now you can understood that only. So n equals to 360 upon 90 minus 1, then 0 से 0 गया, 9 4 जा 36. What will get? 4 minus 1 will get 3. So number of images, 3 images we will got. It means if the two mirrors are arranged like that in 90°, then we can get the 3 images. It means 3 images are formed at the 90° angle. Okay, so like that we can find out the number of images. Okay, so if I can give you the question, calculate the number of images if the angle between the mirror is 60, you can find out. If the angle between the mirror is 70, then you can also find out easily. Okay, so that type of questions will come, then you can easily solve them. Got it? Now next we can take the next topic, that is human eye. Or you know that because of this multiple reflection we can make the
kaleidoscope also. With the help, how we can make the kaleidoscope, we can take the three rectangular mirrors like that, 15 meter long and 4 meter wide. Okay, so three we can take, and these three we can arrange them like that. One, this one. Okay, after that we can arrange the next two like that. These are two. We have just take them and put the Fevicol into it. Then what happened? These are arranged like that. Two mirrors we have arranged like that, and third one like that. Okay, so we will just arrange them, and we can get a triangular form. Okay, after that, the triangular form we have got, then what we will do? We can take one sheet and fold it into, and this triangular will put into that sheet. Okay, like that. That mirror, that triangular formed by the mirror will kept inside it. ठीक है, और सारे मिरर्स जो होंगे फेस एक दूसरे की तरफ होंगे, ऐसे फेस. ठीक है, जैसे मिरर है वो अंदर साइड ऐसे फोल्ड होंगे, इधर होंगे, ये मिरर होगा, ये भी मिरर होगा ऐसे, और थर्ड भी मिरर होगा. तो 3 मिरर्स वी कैन अरेंज देम. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी हैव गॉट दैट, इसमें हमने मिरर रख दिए. ओके, कैलाइडोस्कोप बनाना है हमने, और यहाँ पर हमने क्या अरेंज किया, वन ग्लास है वो यहाँ स्टिक कर दिया, या फेविकोल लगा के उसको स्टिक किया, पेस्ट किया. ओके, now what we will do, we can just keep the or pour the just beads, or you can pour that that ये होते हैं ना pieces of the bangles, you can put that also. ठीक है, now there should be the gap that they will be moving here and there. ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो वो गैप होना चाहिए कि they will move. और here you can make you can just take the paper, that oil paper, or that paper you can put here, you can make one hole, the light will enter through that hole. अब देखोगे, आप घुमाओगे तो lot of different patterns will be formed in that kaleidoscope. It's very good. So you can make this kaleidoscope with the help of 3 mirrors. These 3 mirrors are rectangular mirror and 15 centimeter long and only 4 centimeter wide, and just paste them and you can make this kaleidoscope easily. It's very good. Okay, the students has made, and they will play with the different patterns, lot of patterns they can see from them. Now next topic we can take the dispersion. You know what is dispersion? Actually, dispersion of light is taking place with the help of prism. Have you seen the prism? I want to show you the prism. Let me bring it. So here I have bring that. This is the prism. Actually, this is the prism. It will spread the white light into 7 colors, 7 different colors. So dispersion is that only. The dispersion means white light will spread into its constituent colors, and constituent colors are 7. That is VIBGYOR, V I B G Y O R. Okay, you have seen the rainbow is formed. So in that the 7 colors are visible. Okay, in during the rainbow, what happens, how the rainbow is formed? Actually, during the after the rain, the rainbow is formed only. जैसे ही बारिश हुई तो the drops of water will be there. So when the sunlight will passing through the drops of water, then drops of water is working as a prism, और प्रिज्म के थ्रू जब वापस वाइट लाइट जाएगी, and white light pass through the prism, तो that white light pass through the drops of water and it will be spread into its
constituent colors. So that is known as dispersion of light. Okay, so you can write the dispersion of light, the phenomena of splitting of white light into its constituent colors, that is known as dispersion of light. Okay, so you can write the dispersion of light, the phenomena of splitting of white light into its constituent colors is called dispersion of light. Okay, and these different constituent colors will be there. So you can say ki these the set of colors formed during the dispersion are called spectrum of light. Got it? Spectrum of white light, you can say that. So spectrum of white light are these different 7 colors. So the set of colors are known as spectrum of white light. These colors are violet, indigo, then blue, green. You can write these: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. These are the 7 colors. You can see these 7 colors in the rainbow also. Okay, after rain the rainbow is formed because of the dispersion of light. Okay, so that we have done. Now you know that eye is very important organ of our body. Without eye we are not able to see this wonderful world, and the things which are present in this world we are not able to see that. And without light our eye cannot see. You know that light is a form of energy which gives sensation for vision. Okay, so we can see only with the help of light. बिना light के तो हम देख भी नहीं सकते. And if we don't have that eye, so we are not able to see the things which are present in our surroundings. Got it? So eye is very important organ for us. So let us draw the human eye and let us understand the different functions of different parts of the eye. So I want to explain that human eye. Now, have you seen that periscope also? Periscope, last year I think you have learned in the previous class. Periscope, with the help of periscope we can see under the submarines. Okay, the object which will be below or which will be the above, that we can see it easily with the help of periscope. Okay, it contains the 2 mirrors also, that will be of arranged in 45-degree. Okay, and that will be opposite to each other. So one reflect the light or the object, that object we can see in the another mirror. So here and here 2 mirrors it is, that we can use the 2 mirrors in the that periscope also. So you have learned about the periscope in the previous class. Now we can do that human eye. You know that human eye is very important for us, and we have read about the reflection also. What is reflection? The bouncing back of light after reflection, okay, from that object. So that is known as reflection. And dispersion, you know that. Now that organ which is very important, that is eye. So we can start the human eye. Without eye we are not able to see a single thing in the world.
सो आई इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द विजन. सो देखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी आई है. सो आई का डायग्राम, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आईज, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई, वो हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे अब. ओके, सो फर्स्ट आपने देखा कि हाउ यू कैन ड्रॉ द, देखोगे हाउ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ आई. ठीक है, तो क्या करेंगे आप, आई का डायग्राम करने के लिए फर्स्ट यू विल ड्रॉ वन सर्कल. ठीक है, इस सर्कल बनाया आपने और ये बल्गिंग आउट पार्ट बना देंगे. बल्ग आउट, बाहर की तरफ निकलता हुआ पार्ट बनाएंगे, बल्गिंग आउट पार्ट. ओके, और बल्गिंग आउट पार्ट बना के आप लोग इसको पूरे को जोड़ लेंगे. ठीक है, इस तरह से. ओके, नाउ इधर से फिर से एक लाइन लेंगे, लेयर लेंगे, सॉरी एक और लेयर लेंगे. ओके, और लेयर को पूरे में लगाएंगे इस तरह से. ठीक है, यहाँ भी लेयर ले लेंगे ऐसे. ठीक है, इस तरह से यू कैन मेक द लेयर्स. बन गई आपकी लेयर्स. नाउ व्हाट यू विल डू, ये जो पार्ट है बल्गिंग आउट पार्ट, दिस इज नोन एज कॉर्निया. ये कॉर्निया है. ठीक है, दिस इज द कॉर्निया. ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है. जब ये तो अपनी आईलिड है और जो खुल रहा है ये देखो, तो अपन ये बंद कर रहे हैं तो इट इज़ एन आईलिड. आईलिड के ऊपर आप देखोगे बल्गिंग है, बाहर निकला हुआ पार्ट है, तो कॉर्निया है. ठीक है, अब बीच में आई लेंस है जिस पर रिफ्लेक्शन होता है. तो ये आई लेंस को किसने होल्ड किया हुआ है, मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स, इन्होंने होल्ड किया हुआ है इसको, आई लेंस को. तो ये सिलियरी मसल्स है. ठीक है, तो ये लिखोगे आप सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स. ठीक है, ये सिलियरी मसल्स है दोनों तरफ से, जिसको आई लेंस को होल्ड किया हुआ है अपनी प्लेस पर. ये अपनी प्लेस से इधर उधर नहीं हिल रहा बिकॉज ऑफ द सिलियरी मसल्स. फिर इसके साइड में ये आइरिस है. ठीक है, ये आइरिस है और बीच में ये प्यूपिल है. प्यूपिल या आइरिस, आइरिस और ये है प्यूपिल. ठीक है, अब कुछ वाटरी सब्सटेंस है जो लेंस, ये कौन सा है, ये आई लेंस है. दिस वन इज द आई लेंस. ये आई लेंस इस फॉर्म में है. ठीक है, तो इसका शेप कौन सा हुआ, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है. ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो टाइप के लेंस होते हैं. इस तरह से लेंस होता है एक तो, और एक ये है, ये केव लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव. ठीक है, दिस इज कॉनकेव लेंस और ये कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है. इस तरह से टू लेंसेज आर देयर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. तो ये हमारा जो लेंस है ये आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है. तो ह्यूमन आइज में नेचुरल लेंस प्रेजेंट है. और ये कौन सा लेंस है, इसको क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं. तो ये आई लेंस लिख सकते हो आप या क्रिस्टलाइन लेंस लिख सकते हो. नेचर ने दिया है, ये हमने नहीं बनाया इसको. वी आर नॉट एबल टू प्रिपेयर इट. ठीक है, उसके बाद लाइट एंटर करती है वो कॉर्निया के थ्रू करेगी. ये थोड़ा सा शेप गड़बड़ है, शेप सही करो इसको. इस तरह से शेप कर लेते हैं. ठीक है, अभी भी नहीं हुई सही.
ये हो गई आपकी आई की। ओके, अब ये पार्ट है जहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, जो ये स्क्रीन का काम करता है, इमेज फॉर्मेशन होती है इसी पार्ट पे होती है, स्क्रीन का काम करेगा ये, इसको बोलते हैं हम रेटिना। ये दिस इज रेटिना, ये स्क्रीन का काम करता है, इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे होती है। ओके, सो स्क्रीन हो गई है। अब ये लेंस है और ये रेटिना है। रेटिना और लेंस के बीच में देयर विल बी ना वाटरी सब्सटेंस, वाटरी सब्सटेंस और प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस वाटरी सब्सटेंस का नाम है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और विट्रस ह्यूमर ये हो गया जो अंदर प्रेजेंट है, लेंस, बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। और एक यहाँ पर भी होता है बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक वाटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लेंस एंड इसके बीच में, कॉर्निया के बीच में, जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। ओके, इधर ये किस प्लेस आती है वेयर नो रोड्स एंड कोन्स आर नॉट प्रेजेंट। एक्चुअली रेटिना पे दो टाइप्स के सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है, रोड्स सेल्स हैं और कौन सेल्स हैं। ठीक है, ये इस जगह पे रोड्स और कौन्स दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ लिख देते ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये जो आइरिस, ये प्यूपिल है, ठीक है, सो प्यूपिल कंट्रोल, इधर आइरिस कंट्रोल करेगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हैव यू सीन कि समटाइम्स क्या होता है, जब आप जैसे ही बाहर से ब्राइट लाइट से अंदर आते हो तो अंदर अंधेरा नहीं है, फिर भी आप मीन्स कुछ देर तक यू आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स अराउंड यू। ठीक है, मतलब आपको एकदम से ऐसा लगेगा अंधेरा है पूरे रूम में, यू आर नॉट एबल टू सी अ सिंगल थिंग, थोड़ी देर तक कुछ नज़र नहीं आता। ओके, आफ्टर समटाइम्स आपको धीरे धीरे सब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, विजिबल होने लगती हैं कुछ सब चीज़ें। तो वो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है, जब हम बाहर जाते हैं ब्राइट लाइट में, तो देन द प्यूपिल विल बी जस्ट कंट्रैक्ट, छोटी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, एंड जैसे ही आप अंदर आओगे तो वापस एक्सपेंड करेगी साइज को। सो ये कंट्रोल करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। ठीक है, तो जैसे ही ज़्यादा लाइट हुई तो इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट, एंड कम लाइट है तो इट विल बी एक्सपेंड, तो इट विल टेक टाइम टू एडजस्ट। ठीक है, जैसे ही आप अंदर आए तो अचानक से तो एक्सपेंड नहीं करेगी ना, इट विल टेक टाइम, तो थोड़ी देर बाद आपको सब चीज़ें विजिबल होने लगती है। तो प्यूपिल करेगी, है प्यूपिल को मेनली कंट्रोल कौन कर रहा है? आइरिस कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट विल एंटर इनटू अवर आई। ठीक है, और आई लेंस जो है यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट यहाँ से एंटर करेगी कॉर्निया के थ्रू। ठीक है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होगा, यहाँ से लाइट एंटर करी अपनी आइज़ में जाएगी। ओके, आइज़ में गई लाइट, रिफ्लेक्ट हुई अपने जो आई है उसके थ्रू, ये पहुँचेगी नेक्स्ट में लेंस के थ्रू, और बीच में वाटरी सब्सटेंस है वहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो आई आपको पता है इट इज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। आई इज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यू कैन से दैट। ओके, सो इसमें मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। इट कंटेन्स कॉर्निया, प्यूपिल, देन आइरिस, आफ्टर दैट रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, फिर इधर वाटरी सब्सटेंस है बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, जिसको विट्रस ह्यूमर बोलेंगे। द वाटरी सब्सटेंस और द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, उसको बोलेंगे हम एक्वस ह्यूमर। सो आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यू जस्ट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द आई। तो वर्क कैसे करती है, मैंने अभी भी बताया, जो आउटर लेयर है, ठीक है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग है,
एंड वाइट है, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो आप, वाइट है, एंड इट कैन प्रोटेक्ट द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर आई दैट आर प्रेजेंटेड इंटरनली, ठीक है। सो ये सबकी सबको कंट्रोल करेगी। जो ट्रांसपेरेंट सेक्शन है, बल्गिंग आउट पार्ट है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? कॉर्निया बोल रहे हैं। ये बल्गिंग आउट पार्ट है, बाहर निकलता हुआ पार्ट है, ठीक है। तो कॉर्निया है, बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज एन मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर किसका दिखाई दे रहा है आपको? आइरिस का। ये मसल्स से बना हुआ है, ये आइरिस है ये, ठीक है। दोनों तरफ आइरिस है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है बिहाइंड द दिस कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के बिहाइंड में ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और इन द आइरिस देयर इज एन स्मॉल होल, ठीक है, और या बोल सकते हो स्मॉल ओपनिंग है। तो स्मॉल ओपनिंग है, दैट इज नोन एज ये प्यूपिल, ठीक है। देयर इज एन स्मॉल ओपनिंग, सो दैट इज नोन एज प्यूपिल, उसको प्यूपिल बोलेंगे। एंड जो प्यूपिल है, इट कंट्रोल द मीन्स द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल बाय द आइरिस, ठीक है। द साइज है, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, इट विल बी कंट्रोल बाय द आइरिस। देखो यहाँ ये इधर लगी हुई है आइरिस, इट इज जॉइंट फ्रॉम हेयर। अगर ये यहाँ से होल्ड किया हुआ है तो आइरिस कंट्रैक्ट होगी, तो ये छोटा हो जाएगा प्यूपिल, और अगर एक्सपेंड करेगी तो प्यूपिल है वो बड़ा होगा। तो ठीक है, तो साइज ऑफ प्यूपिल कौन कंट्रोल कर रहा है? आइरिस कर रहा है। ओके, नाउ जो कलर ऑफ द आईज है, जैसे किसी की आईज का कलर ब्राउन है, किसी की आईज का कलर ब्लैक है, किसी की आईज का कलर ब्लू है, तो ये कलर किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द आइरिस। आइरिस जो है इट विल गिव द कलर टू द आई, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस आपको पता चल गए। नाउ आप बोल सकते हो कि आइरिस है, इट विल कंट्रोल द लाइट विच इज एंटरिंग इनटू द आइज, ठीक है। तो इसको आइरिस जो है वो कंट्रोल करेगी आइज को, सॉरी लाइट को, दैट इज एंटरिंग इनटू द आइज, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। नाउ लेंस का काम क्या है? जब लाइट एंटर किया तो जो एंटर करके लाइट कहाँ पहुँची? लेंस पे पहुँची। तो लाइट एंटर करी प्यूपिल, यहाँ पर प्यूपिल में करी, फिर लेंस पे पहुँची, तो क्या हुआ? अब लेंस कौन सा, मैंने क्या बताया, कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस बताया मैंने आपको लेंस बताया कि इट इज़ एन कॉन्वेक्स लेंस है। ये है, आपको पता है ये लेंस है, ये डाइवर्स करता है लाइट को, यानी फैलाता है, दूर दूर तक स्प्रेड कर देगा। और ये लेंस जो है ये एक पॉइंट पर ले आएगा लाइट को, सबको एक ही पॉइंट पे ले आएगा, ठीक है। तो कन्वर्जिंग करता है आपका लेंस। और ये जो लेंस है फोकस करेगा, और फोकस करके इमेज को किस पर बना देगा? रेटिना पर। रेटिना क्या है? स्क्रीन का काम कर रही है। रेटिना नहीं होगी तो इमेज फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। तो रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होगी, इमेज बनाएगी। तो स्क्रीन का काम कौन कर रहा है? रेटिना, ठीक है। तो ये बोल सकते हो आप अपना लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। यहाँ से लाइट एंटर होगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और उस इमेज को एक पॉइंट पे लेके आएगी, और वो पॉइंट वो सारी इमेज को, मतलब सारी लाइट को एक जगह पे कलेक्ट कर देगी, कन्वर्जिंग करेगी, ठीक है। ये डाइवर्जिंग करता है, ये कन्वर्जिंग करेगा, और उसको रेटिना के ऊपर फॉर्मेशन करेगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी रेटिना पे, कि बिकॉज रेटिना एक्ट एज एन स्क्रीन। जैसे अपनी फ़ोटो खींचती है तो स्क्रीन चाहिए ना, तो स्क्रीन का काम यहाँ पर रेटिना कर रहा है, ठीक है। अब फोकस हो गया, तो फोकस कहाँ? लेयर ऑफ रेटिना पे हो गया। नाउ क्या हुआ? अब जो रेटिना था इसके अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट है जो ट्रांसमिट करेंगे सेंसेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। और ये ट्रांसमिट करेंगे इमेज फॉर्मेशन के सेंसेशन को, इनको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व्स। ये जो नर्व्स हैं ये सारे ये होते हैं ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। ये किससे जुड़े हुए हैं? ये अपने ब्रेन से जुड़े हुए हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व्स लिख देते हैं। ऑप्टिक नर्व्स किससे? अपने ब्रेन से कनेक्टेड है, एंड दे विल गिव द इंफॉर्मेशन की इमेज इज फॉर्म्ड।
हमें इंटरप्रिटेशन मिल जाता है कि इमेज फॉर्म हो गई और हमारे माइंड में वो इमेज फॉर्मेशन हमारी माइंड में बन जाती है एंड वी कैन सी दैट इमेज फॉर्मेशन। पर तो इट विल बी जो नर्व्स है, ये नर्व सेंसेशन हुआ तो ब्रेन में पहुंचा। ब्रेन में किसने पहुंचाया? ऑप्टिक नर्व्स है। ऑप्टिक नर्व्स है, इन्होंने इसको ट्रांसमिट किया। तो जंक्शन पॉइंट जो है ये ऑप्टिक नर्व्स का, ये यहाँ पर इन्होंने इमेज बनी तो ये जंक्शन पॉइंट ने उसको ट्रांसमिट किया ब्रेन तक एंड ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि इमेज फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है। अब जहाँ मैंने अभी भी बताया कि जहाँ पर यहाँ पर कोई कोन्स या रोड सेल्स प्रेजेंट नहीं है। इनमें रेटिना के अंदर 2 सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है। एक तो है रोड्स RODS और दूसरा है कोन्स। 2 टाइप्स के सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, कोन्स आर जस्ट फॉर द कलर पर्पस एंड दे आर वर्किंग ड्यूरिंग द ब्राइट लाइट। ठीक है, दिन के टाइम में बहुत अच्छे से काम करेंगे। एंड रोड्स जो हैं दे आर लेस इंटेंस लाइट, दे आर वर्किंग एट लेस इंटेंस लाइट, यानी ये कम लाइट में काम करेंगे। ठीक है, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स है, 2 टाइप के सेल्स होंगे, जिसमें जो रोड सेल्स आपने देखा होगा, जो नॉक्चुरल एनिमल्स है जो रात में इधर उधर घूमते हैं खाने के लिए, लाइक रैट है, देन अदर एनिमल्स बहुत सारे हैं जो रात में घूमते हैं अपना खाना खाने के चक्कर में। सो दे हैव मोर रोड्स एज कंपेयर टू द कोन्स। ठीक है,